Veteran Congress leader Ghulam Nabi Azad has quit the Congress party. He sent in his resignation to Congress interim president Sonia Gandhi. And this, of course, is the latest big exit from the Congress party in the past 3 years and the third this year after the likes of Kapil Sibal and Ashwini Kumar. In a long 5-page resignation letter, Ghulam Nabi Azad has praised the Congress president Sonia Gandhi, but he was scathing and unrelenting in his criticism of Rahul Gandhi, blaming him for the state of the Congress party's defeat in the 2014 and the 2019 elections, as well as subsequent defeats of the Congress party in state assembly elections. He ripped through the Congress vice president Rahul Gandhi. He said that he has displayed childish behavior, glaring immaturity, and has let a coterie of inexperienced sycophants run the party. The Congress was comprehensively destroyed and had reached a point of no return. This is what Ghulam Nabi Azad has written in his letter. He's also slammed a remote control model in which Sonia Gandhi was just a nominal figurehead while important decisions were taken by Rahul Gandhi, or worse, his security guards and personal assistants. Now, sources have indicated that Ghulam Nabi Azad is likely to go ahead and form his own political outfit ahead of elections in Jammu and Kashmir, remember, that are going to be held either later this year or early next year. A whole host of political reactions meanwhile coming in. Let's listen in. ये कभी भी एक इतने बड़े कद के नेता इस स्थिति पे पहुंच जाएं कि मजबूर होकर वो एक 50 साल से बड़ा लंबा रिश्ता उनको तोड़ना पड़ा। जाहिर है वो बहुत आहत हुए होंगे, उनको चोट भी पहुंची। ये स्थिति आने से बचाई जा सकती थी। ये बात समय समय पर कही भी गई, क्योंकि जो भी बातें संगठन के हित में उठाई थी वो कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से। ये मुझे नहीं समझ में आता है कि हर एक विषय राहुल गांधी को बनाता है। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, मैंने कई बार ये कहा है कि हमारे नेता हैं। प्रश्न ये आता है कि वो हमारे अध्यक्ष बनेंगे नहीं बनेंगे, अध्यक्ष हैं कि नहीं हैं। नेता हैं और नेता रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब उसको अगर आज कोई बहाना इस बात को बनाता है, आज कोई इस बात को बहाना बनाता है, तो हम ये ना भूलें कि आज से पहले भी दिन गुजरे हैं। आज से पहले भी राहुल जी के साथ ये लोग बैठे हैं, बात करी है, राहुल जी ने इनको सम्मान दिलवाया है, इनको पद दिलवाए हैं। तो आज क्या ऐसी बात हो गई कि आज राहुल जी से इतने रुष्ट हो गए? ये आज क्या बात हो गई? एक के बाद बड़े नेता, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, चाहे आरपीएन सिंह थे, चाहे उनके बाद में जितिन प्रसाद जी गए, और जिस तरह से एक सिलसिलेवार ये चला जा रहा है। और अब गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस छोड़ के गए हैं। तो समा तो था कांग्रेस पार्टी को अपनी कमजोरियां देखने का। क्यों आज इतने बड़े नेता जो हैं और जो कांग्रेस राहुल जी के बड़े नजदीकी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी या जितिन जी, क्यों छोड़ के गए? परंतु ये जांच करने की बजाय या इसकी पड़ताल करने की बजाय कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक ही रटा रटाया कि उन्होंने धोखा दिया, ये छोड़ के चले गए, ये किया। और उसी सिलसिले में अब जब आप गुलाम नबी आज़ाद साहब छोड़ के गए हैं, तो मैं समझता हूं उन्होंने इसी मौके पे यहीं 4 महीने पहले जब मैंने कांग्रेस को अलविदा कहा था, तो उन्होंने मैं जो आरोप या जो मुझे खदशे थे कांग्रेस पार्टी से, आज उन सब बातों के ऊपर गुलाम नबी आज़ाद साहब की चिट्ठी ने मोहर लगा दी। The problem is in the Congress party is that everybody knows that Rahul Gandhi is an immature, whimsical and unpredictable leader. Congress President or Srimati Sonia Gandhi is not taking care of the party. She basically all these years she is only trying to promote her son. But that is a futile attempt. It is not happening, neither it has any chance that her mission will be successful. As a result, what happened? The people who were loyal to the party or who are loyal to the party, they are deserting one by one. हर कोई कदम में कांग्रेस में ये आगे बढ़ते रहे, और इंदिरा गांधी जी के वक्त से ये इनर कैबिनेट यानी किचन कैबिनेट के मेंबर थे। हर कोई मशवरा इनसे होता था। आज भी
मिसेस सोनिया गांधी के बहुत करीब थे, इस खानदान के करीब थे। मगर अफसोस है मुझे, हमें समझ नहीं आती है कि ऐसा क्या हो गया है कि इन्हें इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। सेहत तो इनकी पहले भी बहुत ख़राब रही, कई दफ़ा फिर ठीक हो गए, अभी भी ये कोविड में मुलव्वस थे। मगर मैं नहीं समझता सेहत का मामला, ये मैं समझता हूँ सियासी मसला है। इनको ये लगा कि इन्हें वो मोहब्बत और वो प्यार नहीं मिल रहा होगा जो पहले था, या जो एतबार इन पे था वो नहीं था, कुछ हो सकता है ऐसा। जो गुलाम नबी जी की चिट्ठी है वो एक जीता जागता सबूत है, इस बात का प्रमाण है कि कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक मजबूत राजनीतिक दल से आज एक अड्डा बना दिया है दरबारियों का, सिक्योरिटी गार्ड का और ओएसडीज का। तो आज ये प्रश्न हमें भी चिंता कर रहा है कि क्या हुक्मरान जो टॉप लीडरशिप है कांग्रेस की, क्या वो भी इन दरबारियों की शिकार है? क्या ऐसी मजबूरी है कि एक मंडली के लिए आज एक 100 साल से पुरानी, 125 साल से पुरानी पार्टी का भविष्य, वर्तमान सब कुछ दांव पे लगा दिया? वो क्या मजबूरी है, ये नहीं समझ आ रही। क्या बात हुई गुलाम नबी आजाद से, क्यों आपने इस्तीफा दिया? क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं अब हमारे सबसे कदावर रहनुमा हैं, रियासत जम्मू व कश्मीर के ही नहीं बल्कि पूरे देश के, पूरे हिंदुस्तान मुल्क के बहुत बड़े सरकर्दा रहनुमा हैं। तो जब गुलाम नबी आज़ाद साहब का इस्तीफ़ा आया, जब उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से बेसिक मेंबरशिप से और पद, जितने भी पद पोस्ट से उसे इस्तीफ़ा दे दिया, हमने मुनासिब समझा कि अपने लीडर के साथ रहकर हम जम्मू व कश्मीर में एक मजबूत तंजीम लाए और गुलाम नबी आज़ाद साहब की क़यादत में हम आगे का रोल जो होगा वो प्ले करेंगे जम्मू कश्मीर। क्या गुलाम नबी आज़ाद एक नई पार्टी बना सकते हैं जम्मू कश्मीर में, इसकी संभावना है? अभी देखिए, हमें तो लीडरशिप के साथ, हम गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ हैं, हमारे लीडर हैं, जो उनका फैसला होगा वो अपनी पार्टी बनाएंगे, वो रीजनल पार्टी बनाएंगे, नेशनल पार्टी बनाएंगे, वो उनका फैसला होगा और हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। आपको लगता है कि और भी जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेता हैं जो साथ आ सकते हैं? बहुत सारे लोग, हमें तो हम नेताओं की बात नहीं करते, सारे लोग जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो जुड़ेंगे हमारे साथ। गुलाम नबी आज़ाद साहब ये कहा गया है कि पार्टी ने इतना कुछ किया गुलाम नबी आज़ाद के लिए, 40 साल से ज़्यादा समय तक उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई, और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया कांग्रेस लीडरशिप के खिलाफ, वो गलत था। देखिए, जो भी रोल गुलाम नबी आज़ाद साहब को दिया, चाहे उसको ऑर्गेनाइजेशनल रोल दिया गया, चाहे उसको पार्लियामेंट लोकसभा का रोल दिया गया, चाहे उसको राज्यसभा का रोल दिया गया LOP के, चाहे उसको जम्मू व कश्मीर में चीफ मिनिस्ट्री का रोल दिया गया, जितने भी वो पद पोस्ट उन्होंने लिए, वो हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशनली या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर या चीफ मिनिस्टर के ओहदे को लेकर या राज्यसभा में LOP के हैसियत से वो हमेशा अपने उस मिशन में कामयाब रहे जो उनका ख्वाब था, और वो कामयाब रहे उसमें। हाँ, लेकिन जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया वो सही था? देखिए, कौन क्या कहेगा, हमें उसके साथ कुछ नहीं, वो आगे आगे आप देख लोगे क्या होगा। पर पार्टी बना सकते हैं गुलाम नबी आज़ाद? पार्टी तो बना सकते हैं, वो तो उनका फैसला होगा, हम उनके साथ हैं, जो ही पार्टी आएगी तो हम पार्टी में होंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया।